Hello, my dear friends. Welcome to the 13th episode of Poets Talk About Poets. It's a program that focuses on the Indian language poets, vernacular regional language poets who contributed to the society, highlighted their achievements, and we would be talking about their contribution toward the society. Poetry is an emotional outburst of feelings and expressions, and a poet is the one who expresses his thoughts through the medium of word. But his contribution is least recognized, as he is least aware of, and the people are least aware of his whatever his work or contribution. This program is showcases this Indian languages. Main aspect of this poem, the vernacular uh, reasons, and they present about critical evaluation, and our panel members, who are esteemed panel members, would be highlighting their uh, achievements, and they would be talking about their more about the poetry. In the last episode, we talked about Kedarnath Singh, Dom Morias, and Professor Puran Singh by Dr. Renu Mishra, Ms. Sunita Hussain, Dr. Parvender Mehta. In this episode, we had the honor of Mr. Ashish Gaur, Ms. Sunita Singh, Ms. Shalini Nand Kevlar, and Dr. Manju Chauhan, who would be talking about Sunita Shanta Sinha, Kaif Azmi, Uday Prakash, and Fayaz Ahmad Fayaz. I have with me former professor of Delhi University, Dr. Rupali Shakargad, who would be moderating along with me. So I beg your pardon, sir, since I haven't opened the camera, since there is internet is troubling a lot, but I had to carry it forward the show. So I would request Dr. Rupali for Sarkar to carry further the program. The author of the poet today would be Mr. Ashish Gaur, would be talking about Uday Prakash, and second would be Miss Sunita Singh, who would be talking about Kaif Azmi. Dr. Manju Chauhan would go third, who would be talking about Fayaz Ahmad Fiaz, and Miss Shalini Nand Kevlar would be talking about Santa Sheikh. Over to you, Rupali Sarkar. Evening, dear poets, poets who are friends. This is a very special segment of the Fertile Brain, which was initiated by Prasanna and me to commemorate Jayanta Mahapatra. And our intention was that we had got a bit tired of just expressing our poetry, and somewhere we were forgetting the great poets of this country and others who were writing. And it was very important for us that we bring back. And so the Songs of India is really our contribution or dedication to these great legendary poets who sang of freedom, they sang of humanity, they sang of people who are marginalized, people who have been dislocated. You know, they have talked about love, but love for humanity beyond the love for woman, you know, कि मुझे पहले जैसे मोहब्बत ना मांग और भी गम है जमाने में. So this और भी गम है जमाने में is expressed so beautifully in poetry. And so today we begin this, and we have, I think, Prasanna hasn't mentioned, done almost all the languages in this country, almost all. We're just waiting for a few languages like Bodo, and we can, if you know poets who can, you can introduce to the program, we'd be very grateful. I begin with today's first poet who will present his, his favorite poet, and that is Ashish Gaur. Ashish Gaur is a passionate wordsmith, weaving tales in both Hindi and English.
As a poet and storyteller, he traverses the realms of emotion and imagination, crafting verses and narratives that resonate with the soul. He's professionally engaged, very interestingly, with advanced cardiac surgery in the capacity of senior manager and senior surgical associate in Mumbai. So dil dharak dharak ke keh raha hai, huh, Ashish? जी So we have this, the mic in hand and a story to share. He dives into the world of podcasting. His biodata is very, very rich, and therefore I may not be able to read all of it because I'd like to give him time to speak about his poem. The mysteries of human mind and uncover the hidden gems of our past. He also has Creative Odyssey explores his human mind, thoughts, reactions, uses words, relationships, etc. Today he'll talk about Uday Prakash. He's an acclaimed Hindi poet, scholar, journalist, translator, and short story writer. I feel very connected to him because I was also in GNU. And you know, when you study in GNU, you are an Inkalabi. Somewhere there is this revolution in your mind, in your heart. And so therefore we look forward to hearing you, Ashish, speak of your favorite poet, Uday Prakash. So handing over the mic to you. थैंक यू मैम, थैंक यू प्रसन्ना सर. टू स्टार्ट विद, मैं थोड़ा नर्वस हो गया टू नो कि मैडम यू हैव वर्कड विद उदय प्रकाश जी एंड यू नो हिम क्लोजली. सो एक पोएट को उसकी पोएट्री के थ्रू ही दुनिया जान सकती है. सो शुरू करते हैं उनकी ही चंद लाइनों से. आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है. जी हाँ, ये उदय प्रकाश हैं. इतनी जिंदा दिली और इतनी गहरी लाइंस लिखने वाले उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में मध्य प्रदेश में हुआ. अभी भी ये मध्य प्रदेश में रहते हैं. इन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया और उसके बाद जेएनयू से ये रिसर्च स्कॉलर रहे. दिनमान अखबार में ये निरंतर लिखते रहे और अंग्रेजी मैगजीन एमिनेंस के भी ये काफ़ी समय तक एडिटर रहे. इन्होंने काफ़ी किताबें, काफ़ी पोएम्स, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं. ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं. इन्होंने फिल्म डायरेक्शन भी किया है, फिल्म स्टोरी राइटिंग भी की है. बतौर निर्देशक इन्होंने अपनी पहली फिल्म साहित्य अकादमी के लिए बनाई थी, मशहूर कवि धर्मवीर भारती जी पे, और इसी फिल्म के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था. इनकी प्रमुख किताबें जो हैं उसमें पीली छतरी वाली लड़की काफ़ी फेमस है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है. और मोहनदास एक किताब उन्होंने लिखी है जो काफ़ी फेमस है. और कुछ कहानियां अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें तिरिच जो उनकी कहानी है वो मेरी सबसे फेवरेट कहानी है, और वॉरेन हेस्टिंग का सांड. इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिले जिनमें से प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुष्किन अवार्ड, वनमाली सम्मान इत्यादि. अब आप ये जानना चाहेंगे कि उदय प्रकाश जी को क्यों पढ़ना जरूरी है. उदय प्रकाश जी को खासकर इस समय में पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक पोएट को पढ़ने की काफ़ी वजह हो सकती हैं, काफ़ी पर्सनल वजह भी हो सकती हैं. लेकिन अगर 3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई इनकी पोइट्रीज को पढ़ के, वो ये है कि पहला रीज़न ये है कि सामाजिक चेतना और जो हाशिए पे पड़ी आवाज़ें होती हैं वो इनकी पोइट्री में काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखती हैं. समकालीन भारत का ईमानदार चित्रण है और प्रेम, हानि और पहचान की शाश्वत विषय वस्तु. ये 3 चीज़ें ऐसी मुख्य कारण है जिसके लिए हमें पढ़ना चाहिए. उदय प्रकाश जी के साहित्यिक कार्यों में उभर कर आने वाले प्रमुख सामाजिक मुद्दे वंचित वर्गों की आवाज़ है. ये अपनी कहानियों और अपनी कविताओं में जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर काफ़ी जोर डालते हैं, काफ़ी प्रकाश डालते हैं. शहरीकरण और आधुनिकता के दुष्प्रभाव, लिंग भेदभाव, महिला सशक्तिकरण, इन पे भी काफ़ी रोचक किताबें इन्होंने लिखी हैं. उनकी कई रचनाएं महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव और उनकी शक्तिशाली भूमिका पर प्रकाश डालती हैं. उनके कार्यों में विस्थापन,
और उच्छेद की समस्या भी उभर के आती है कि अगर हम, खासकर जरूरी नहीं है कि आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत जबरदस्ती लाए गए हों। आजकल जैसा देखा जाता है कि टायर सी सिटी के लोग पढ़ लिख के टायर ए सिटीज में अपनी जिंदगी बनाने आते हैं। तो आज के समावेश में अगर देखें तो वही एक सबसे बड़ा विस्थापन है। भारत पाकिस्तान का विस्थापन तो था ही, बट उसके अलावा हर टायर सी का जो नुमाइंदा है वो ये विस्थापन आधुनिक काल में झेलता है। तो इसकी समस्याएं जो वो झेलता है उसके ऊपर इन्होंने काफी प्रकाश डाला है। वे इन मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उनके पीड़ितों की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। सामाजिक असमानता, जो सोशल इनजस्टिस है और भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा कि जो भी समय हमारे पास है उसमें मैं आपको छोटी छोटी 3 कहानियों के बारे में उनके बताऊं जो मैंने पढ़ी थी। पहली कहानी जो मुझे उनकी सबसे ज्यादा पसंद आई, उसका नाम था तिरिच। तिरिच उदय प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनके कविता संग्रह तिरिच से ही, तिरिच नाम की किताब से ही ली गई है। ये कहानी एक बेटे की पिता के प्रति भावनाओं और उनके शहर के प्रति भय से जुड़ी हुई है। बेटा अपने पिता के लिए क्या भावनाएं रखता है और बेटा उसी समय उस शहर से क्या अपेक्षाएं रखता है, उस शहर से उसका जो डर है वो उस कहानी में उभर के आता है। कहानी में क्या बताया गया है कि पिता का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी रखते हैं और दुनिया उनको जानती है। ऐसा एक पिता रहता है, अपने दिल में और अपने मन में बहुत कुछ रखता है जो उनके बेटे को भी नहीं पता होता। एक दिन वे शहर में घायल होकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेटा उनकी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता है। और ये कहानी, इस कहानी को 2010 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ये कहानी हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी जो सबसे पसंदीदा मेरी है उनकी, वो है वॉरेन हेस्टिंग का सांड। नाम जितना इंटरेस्टिंग है, कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या रहता है कि कहानी में हेस्टिंग, जो भी आपको पता होगा ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो भारत में पहली बार आने से लेकर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करने, कार्यभार संभालने तक और उनके बुढ़ापे के दौर में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े पहलुओं को दिखाता है कि किस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स आए इंडिया में, फिर उनको बंगाल के अंदर ट्रांसफर किया गया और वहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोर पकड़ा, उनकी जो नींव गहरी हुई और बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला के साथ जो वॉरेन हेस्टिंग्स के डिस्कशंस थे, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, वो सब बताते बताते धीरे धीरे ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बुढ़ापे तक जाती है। जो बातें किसी को भी नहीं पता है कि कैसे उन्होंने खुद अपने ऊपर भ्रष्टाचारों के आरोप आरोप झेले और उनकी खुद की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसे त्याग दिया। कहानी में हेस्टिंग के व्यक्तिगत और अज्ञात पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। ये कहानी भी 2001 में नाटक के रूप में भी उभर के सामने आई थी। और ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और एक आखिरी किताब, इससे पहले कि हम उनकी कविताओं पे जाएं, उनकी एक और किताब है पीली छतरी वाली लड़की। ये किताब मुझे लगता है उदय प्रकाश जी को जो भी जानते हैं या जेएनयू से जुड़े जितने भी लोग हैं सब पीली छतरी वाली लड़की के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो उनके उपन्यास में शामिल है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है राहुल, वो एक लड़की से प्यार करता है और इस प्रेम कहानी में जाति व्यवस्था, सामाजिक मूल्य और उपभोक्ता संस्कृति की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से उनके रिलीजन, उनकी जाति, सोशल स्टेटस, ये सब उनके बीच में आड़े आता है। कहानी में राहुल के मर्दावादी रुख का उल्लेख है, किस तरह से उसके अंदर एक मेल शोविनिज्म है जो धीरे धीरे टूट जाता है और उनका प्रेम मनुवादी मान्यताओं पर आधारित है। आजादी के बाद भारत की उपभोक्ता संस्कृति में पनपी मान्यताओं को अंदर से तोड़ने लगता है। ये जो कहानी है इस तरह का बिंब बनाती है। अंत में कहानी में पलायन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, विस्थापन का, जो समाज में प्रचलित मान्यताओं को ठुकराता है। कहानी का अंत का जो आरंभ है वो बॉलीवुड से होता है और अंत भी बॉलीवुड पे ही जाके होता है। लेकिन इस समूचे विमर्श में बॉलीवुड जो है वो एक तरह का विपरीत स्पष्ट तात्पर्य है, एक पैराडॉक्स है। तो ये 3 मेरी उनकी सबसे पसंदीदा कहानियां रही हैं। अब अगर मैं जल्दी से आपको उनकी पोइट्रीज पे ले आऊं
उनकी पोइट्रीज काफी हैं, लेकिन उनकी पोइट्रीज में जो मेरी सबसे पसंदीदा उनकी जो पोइट्री है वो है पिता। पिता जो कविता है उसमें जो मेन थीम है वो है एक बच्चे का अपने पिता के लिए प्रेम, माता पिता का बलिदान, अलगाव, हानि, सेपरेशन, आत्मचिंतन, अस्तित्व और पिता की स्थिति। कविता ऐसे है। पिता पिता झाड़ झंझाड़, घाटियों और पत्थरों से भरे चटियाल मैदान थे। पिता सागौन, शीशम, बबूल, तेंदुए और हिरनों से भरे बीहड़ थे। बचपन में अक्सर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आसपास के गांवों में ललकार दिया करता था। नाके के पार शहर तक में पिता का रौब था। एक एक इमारत पर उनकी कन्या सरकी थी, एक एक दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान थे, हर दरवाजे की काठ पर उनका रंदा चला था। नाके के इस पार जहां से गांव की वीरानगी शुरू होती है, हर खेत की कठोर छाती पर पिता अपना कुदाल धसा गए थे। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। हल की हर मुठ पर उनकी हट्टेदार हथेलियों की छाप थी। हर गरियार बैल के पुट्ठों पर उनके डंडे के दाग थे। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। पिता पहाड़ की तरह चलते, भीड़ की तरह उनके कंधे पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता था। बाद में पिता गायब हो गए। कहते हैं खेल, कुदाल, बैल, इमारतें, ईंटें, दरवाजे, दरख्त, बाजार उन्हें पचा गए, उन्हें खा गए। मुझे लगता है उस चटियाल मैदान के भीतर जो पिता थे, जमीन की दूसरी और तीसरी परतों में सरकता हुआ कोई नम सोता भी था, जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा कभी कभी मेरी आंखों से भी रिसने लगता था। पिता, ये कितनी सुंदर कविता है देखो पिता के लिए। और दूसरी कविता जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है तिब्बत पे। ये कविता इस कविता के लिए उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला। बड़ी बढ़िया कविता है, देखिए सुनिए। इस कविता का थीम मैं आपको नहीं बताऊंगा, कविता इतनी सुंदर लिखी गई है कि आपको कविता सुनते ही उसकी थीम समझ में आएगी। तिब्बत। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं। आजकल मंत्र बुदबुदाते उनके खच्चरों के झुंड बागीचों में उतरते रहते हैं। गेंदे के पौधों को नहीं चरते। गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा। तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं पापा। तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं पापा। तिब्बत। तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा। लामा शंख बजाते हैं क्या पापा। पापा, लामाओं को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है क्या कभी। जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्रों के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं। तिब्बत, 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 और रोते रहते हैं। वो अपने पिता को नाम से नहीं पुकारते, वो मरे हुए इंसान के सामने सिर्फ फुसफुसाते हैं। तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत। रात रात भर रोते हैं। क्या लामा हमारी ही तरह रोते हैं पापा। ये उनकी कहानी, ये दूसरी कविता थी उनकी, तिब्बत। और अगर एक और कविता पे प्रकाश डालना पड़े, अगर मेरे पास समय है तो उनकी आखिरी कविता पे मैं बात करना चाहूंगा। ये भी उनकी एक सुंदर कविता है, एक शहर को छोड़ते हुए। जिस तरह से जब मैंने उनके बारे में बताना शुरू किया और विस्थापन के बारे में उदय प्रकाश जी ने काफी लिखा है, विस्थापन के बारे में जो मेरी राय थी, जो टायर सी से टायर 1 सिटी में जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनने आते हैं, वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि जो लव है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो डिवोशन है और जो लॉस है, ये उसकी थीम पे कही गई कहानी है। एक शहर को छोड़ते हुए। एक दिन हम अपना सारा सामान बांधेंगे। एक दिन हम अपना सारा सामान बांधेंगे और रेलगाड़ी में बैठकर चल पड़ेंगे ताप्ती। एक नजर तक हम नहीं डालेंगे ऐसी जगह जहां
इतने दिनों तक रहते हुए भी रह नहीं पाए, जहां दिन रात हम हड्डियां गलाते रहे अपनी और लोगों के भीतर किसी द्रव की खोज में हंसते रहे। हम चाहेंगे ताप्ती कि इस जगह को भूलते हुए हम खूब हंसी आए और अपनी बातचीत में हंसते हुए हम इस जगह का अपमान करें। सोचें कि एक दिन ऐसा हो कि सारी दुनिया में ऐसी जगह कहीं ना हो। फिर ताप्ती खिड़की होगी और पेड़ दौड़ेंगे एक चक्कर में, और कोई बछड़ा मटर के खेतों के पार उतरेगा। एक के बाद एक गांव और शहर पार करते चले जाएंगे हम अपने सफर में। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर दुनिया घूमती ही रहेगी, मिट्टी के कत्थई घरों से भरी हरी दुनिया। फिर मैं कहूंगा, हमें हमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि हमने उन्हें छोड़ा, जो छोड़े हुए ही थे हमें और हमारे जैसे बेइंतहाई लोगों को, शुरू से ही अपनी संकरी दुनिया के लिए। हम ऐसे चंद चालू संबंधों की परछाई तक को कर देंगे नष्ट अपनी स्मृति से, और चल पड़ेंगे अपना सारा सामान समेटकर, एक के बाद एक गांव और शहर और जीवन और अनुभव पार करेंगे। लेकिन हम आखिर में ठहरेंगे कहाँ ताप्ती, कहाँ ताप्ती। ये उनकी कविता विस्थापन पे जो मुझे काफी अच्छी लगती है। और मेरे पास कुछ समय है मैम। Prasanna is there? I didn't check the time. I will be depending on. ठीक है, आप समय देखिए, तब तक मैं एक कविता और बताता हूँ इनके बारे में। कुछ बन जाते हैं, ये जो इनकी कविता है उदय प्रकाश जी की, इसका मुख्य थीम या विषय जो है वो प्रेम और रूपांतरण है। कविता में प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कई रूपों में बदलने को तैयार है। वह मिश्री, दूध, मिठाई, गेहूं का दाना, चीनी मिट्टी का प्याला आदि बनना चाहता है, ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ एक हो सके और उसमें घुल जाए। यह दोस्तों प्रेम के रूपांतरीकरण और एकाकीकरण की इच्छा को दर्शाता है, और सहज और स्वतंत्र होने की इच्छा को भी दर्शाता है। ये कविता यूं है। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ। तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री धुला दूध हूँ मीठा। मुझे एक सांस पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ। मुझ में दौड़ो, मैं पहाड़ हूँ। मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पहाड़ हूँ, मैं सेमल का पेड़ हूँ। मुझे जोर जोर से झकझोरो और मेरी रुई की हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छुकड़े टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करते हुए कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुपकर तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूं मैं, तुम धूप बन जाओ, मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छुपी खेलो, या कोपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पांव चलूंगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करें कि मैं चिन्नी मिट्टी का प्याला बन जाता हूं और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूं नीले रंग का, तुम उसे भीतर से हवा भर दो, फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं, मसलन। तो दोस्तों, ये थे उदय प्रकाश, इनकी कविताएं, इनकी कहानियों और इनके नाटकों के साथ। आशा करता हूं कि जो भी हमारी छोटी सी वार्तालाप हुई उसमें मैं उदय प्रकाश जी के बारे में आपके अंदर एक कुछ इंटरेस्ट जगा पाया। उन्हें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उन्हें खोज के पढ़िए। बहुत ज़बरदस्त और हमारे ज़माने के बहुत बढ़िया लेखक और कवि हैं। धन्यवाद। I think Prasanna is in a place which is not very well connected. He's right now in the interiors of this country. Thank you so much, Ashish Gaur. थैंक यू मैम। Aapka presentation has been wonderful because
जो मकसद है इस पटल का, जिसके कारण हम लोगों ने we started this program, आपने उसको पूरा कर दिया है, because you've introduced us to a poet that we had not read. No, so there you are, Prasanna, you have appeared. I'm so happy. And so इनकी जो कविता आपने पढ़ के सुनाया है, they were really very very heart rending, because हम माँ को बहुत अहमियत देते हैं. And we know that biological motherhood doesn't mean anything, because हमारे culture में, I won't say religion because I'm an Indian, so I'm an Indian culture. Lord Krishna, भगवान कृष्ण जी हैं, उनकी माँ जो है वो उनकी बायोलॉजिकल मदर से हम नहीं जानते हैं उनको, हम उनके मातृत्व जिन्होंने दिखाया है. तो बट इन योर पोएम दैट यू हैव रेड ऑफ दिस ग्रेट पोएट इज फादर. वो फादर है, वो तो क्या क्या वो अपने दिल में रख के, कैसे पत्थर रख के, एंड द स्टोरी ऑफ तिब्बत, and I must thank you, and I'm sure all of us who are here and those who are listening, that you have introduced us to a great poet, a living poet, and we should be reading him. And आपने बहुत you have given us a path to go into literature again. Thank you so much, Ashish. You yourself a great poet, and we are so grateful you are here today. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Yes, so grateful indeed, sir. Such a brilliant performance. I mean, like, you made us curious of, getting to know about Uday Prakash ji and how you presented it so well. And thank you for making introducing us Uday Prakash ji and his condition. It's beautiful. It's so imbibing. Let us move forward and let me take the honor of introducing Miss Sunita Singh, who will be talking about Kaif Azmi. Miss Sunita Singh is a bilingual poet, writer, and a storyteller. Has Prasanna gone off the air? Can you hear? Can you hear me? You can? I think he has some connectivity issues. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am, you are audible, but Okay. Prasanna. Okay, so I'll read out her bio. We have to, we are so dependent on all kinds of gadgets, and it's sometimes not possible. But you're most welcome here today, Sunita. Sunita Singh is a bilingual poet, writer, and storyteller, fluent in English and Hindi. She is author of Making of a Chief Justice of India, Life and Times of Justice Kamal Narayan Singh. Sunita was born and brought up in Allahabad and believes that the Ganga Jamuna Tehzeeb of her city developed in her the love for languages and arts. So poems and stories have been featured in many national and international anthologies and e-zines. She has been a co-editor in some projects. A solo book of poems, The Dance of the Flamingos, is an award winner. Sunita lives in Delhi and finds inspiration in nature, in mountains, wilderness, or just in the quiet corner of a park. So Sunita, you're going to speak about Kathy asked me today. He's a well-known poet. And on this platform, we've also been able to bring Urdu back as a language, which has been quite ignored and not considered sometimes, and more Hindi poetry is read. But thank you so much for being here today. So I hand over the mic to you to tell us about Kathy Asmi. You unmute your mic. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. Namaskar. You check time yourself. Sunita, will you check the time yourself? Okay. Yes, I will. Yes. Okay. So quickly, first, I would like to say that 15 minutes
for a legend like Kaifi Azmi is too less, but I will try. And I want to thank Fertile Brains for this opportunity and also congratulate them for this brilliant idea of talking about Indian poets writing in Indian languages, which makes us aware about the rich culture which we have been blessed with. Having said that, let me move further and let me start. So I will quickly walk through his life and then talk about his poems. So Kaifi Azmi's real name was Athar Hussain Rizvi, and he was born on the 14th of January 1918 in a small village of Azamgarh, Uttar Pradesh called Mijwan. He wrote his first ghazal at the age of 11. Yes, hard to believe. And his family did not believe him. He recited this ghazal at a mushaira, and everybody said that he had stolen it from his brothers because his brothers were also, apparently into writing ghazals and all. He was given, he was sent to learn, religious, studies, but he left that and he joined the Communist Party at the age of 19 and started writing for the party's paper Qawmi Jang and moved to Bombay in 1943. This was when his first poetry collection, Jhankar, was published. He became a part of the Progressive Writers Association. And since he was writing, he was part of the commune. He was earning a paltry sum, which was enough for a single person. And by this time, he had become a great favorite in mushairas and poetry gatherings. But then in 47, at a mushaira in Hyderabad, he met Shaukat. It was love at first sight, and they both married. And then, of course, that money was not enough. So what should they do? The family started growing. So Ismat Chughtai, who was also a writer, famous Urdu writer, and she was a friend, and she requested her husband, Shahid Latif, who was directing a movie, Buzdil, to give him a chance to write the lyrics. So this was his how he stepped into the Hindi film industry as a lyric writer for Buzdil in 1952. Then, of course, his noted film songs are from Shama, Kagaz Ke Phool, Shola aur Shabnam, Anupma, Aakhri Khat, Hakikat, Haste Zakhm, Arth, etc., etc. Apart from writing songs, he also wrote Chetan Anand's film Heer Ranjha completely in verse. Can you believe it? Entirely in verse. And this created history in dialogue writing. I haven't seen the movie and I'm going to see it. So, because I was quite amazed by this. Apart from other awards, he has also been the recipient of Padma Shri, which is the highest government civilian award. And Kaifi, he was a rare poet. He practiced what he preached. So for the last 20 years of his life, Kaifi Azmi he moved back to Mijwan, his village, and thought of giving back to society what he had gained. And he transformed this village from a village in oblivion to a model village and set up an NGO which works for the upliftment and empowerment of the girl child. So there's a secondary school, inter-college, and so on and so forth. Kaifi Azmi was a man of the masses. वो जमीन के बहुत करीब थे और उन्होंने इस अपनी पोएम किसान में लिखा है, चीर के साल में 2 बार जमी का सीना दफन हो जाता हूँ, गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ, अब निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे जो कोई दामन में, दामन फट जाए, घर के जिस कोने में ले जाके कोई रख दे, मुझे भूख वहां से हट जाए. So he's talking about how a farmer works hard and the abundance which he provides to us. लेकिन आगे moving further देखिए इसी में ये 2 लाइनें हैं.
जो कि एक किसान के हालात क्या हैं उसको बताती हैं। वही खस्ता बदहाल कर्ज के पंजाए खूनी में निढाल, वही खस्ता बदहाल कर्ज के पंजाए खूनी में निढाल, यानी द farmer is in a pathetic condition. He has been gripped by the shackles of debt and he rendered lifeless, you know. और आज भी यही हालत है, आज भी किसान लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, उनकी आज भी यही हालत है. So this is about the hardship of a farmer. उनकी इनकलाबी पोएट्री जो थी वो बहुत गस्टों से भरी हुई थी. और ये वर्स मैंने आंधी से लिया, मैं छोटे छोटे ले रही हूँ क्योंकि पूरी नहीं पढ़ रही. ये देखिए उन्होंने लिखा, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम he wanted to bring about a social change. और ये तो खैर आंधी लिखी थी फ्रीडम मूवमेंट के टाइम. मचलती झूमती हलचल मचाती, तड़पती शोर करती, दिल दहलाती, गरजती चीखती, फितने उठाती, कयामत को जगा कर ला रही है, उठो देखो आंधी आ रही. निशानात सितम थर्रा रहे हैं, हुकूमत के अलम थर्रा रहे हैं, गुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, गुलामी अब वतन से जा रही है, उठो देखो वो आंधी आ रही है. Then who can forget this verse, this song from the movie हकीकत. इसमें जो है पेट्रियोटिज्म और स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस भरा हुआ है. हर 15 अगस्त को हम ये सुनते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. अब इसी देखिए मूवी में एक उन्होंने एक पेन ऑफ पार्टिंग, एक रोमांटिक सॉन्ग भी लिखा है. मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया. अब ये आगे ऐसे लास्ट लाइन है, चली जाती है इस तरह. तो देखिए इसमें मतलब लुक एट द डेप्थ, इतनी सिंप्लिसिटी से वो बता रहे हैं और ये एक कनेक्ट करता है. आई थिंक दैट इज व्हाई ऑल हिज सॉन्ग्स वर सो पॉपुलर. As a lover, his romanticism is supreme. The delicacy of emotions, sensitivity जिस तरह से वो लिखते हैं उसमें बहुत डेप्थ है. ये मैं उनकी एक पोएम है नॉन फिल्मी तसव्वुर, उससे पढ़ रही हूँ. ये अपनी माशूका के बारे में लिख रहे हैं. ये किस तरह याद आ रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, कि जैसे सचमुच निगाह के सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो. ये जिस्म नाजुक, ये नर्म बाहें, हसीन गर्दन से डौल बाजू, शगुफ्ता चेहरा, सलोनी रंगत, घनेरा जूड़ा सियाह येसु, नशीली आंखें, रसीली चितवन, दराज पलके, महीन अबरू, तमाम शोखी, तमाम बिजली, तमाम मस्ती, तमाम जादू, हजारों जादू जगा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो. तो ये है कैफी. और फिर वो फेमस सॉन्ग अर्थ का, विच टच्ड अ कॉर्ड, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं. तो देखिए, और फिर मैं कागज के फूल में ये गाना, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ जिससे सारे कवर कर सकूं थोड़ा बहुत. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न तुम, हम बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम. तो ये इनकी हर एक जो मैं ये पढ़ रही हूँ तो आप देखेंगे कि हर एक में सेंसिटिविटी, डेप्थ ऑफ इमोशंस और सिंप्लिसिटी. all the lyrics, all the songs, they flow spontaneously. कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा कि फोर्स्ड हो. ये कागज के फूल का ये गाना मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है. And it is true about the material world. These lines are eternal. देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी,
क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी. So all these songs have left a deep impact because as a lyricist, he doesn't attempt to shock. His verses flow naturally, and that is the reason that the reader feels the connect. लेकिन मुझे personally, Kafi the feminist really speaks to me. He talks about equality, about a woman walking shoulder to shoulder, that too written 75 years ago. And I quote from the Nazm, his Nazm Aura. मैं इसमें ट्रांसलेशन भी देती जाऊंगी, जल्दी जल्दी पढ़ूंगी. तो ये सुनिए. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. I'm not reading the full poem, just portions of it. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं. नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं. उड़ने खुलने में है निखत, हमें गेसू में नहीं. जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं. उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. Patience will not help you struggle through life. Blood, not tears, sustains the pulse of life. Spread your fragrance. Let your tresses fly free. Heaven is not just in the arms of the man you love. You must walk unfettered on the path of freedom with me. Arise, my love, for now you must march with me. गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए. फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए. कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए. जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए. रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. Wherever you go, sacrifice awaits you. To surrender is a way of life. All your charms condemn you. The ways of the world are poison for you. Change the seasons to flourish and be free. Arise, my love, for now you must march with me. कद्र अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं. तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी भी नहीं. तू हकीकत भी है, एक दिलचस्प कहानी ही नहीं. तेरी हस्ती भी है, एक चीज जवानी ही नहीं. अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. History has not known your worth thus far. You are not merely made of tears. You have a fire burning inside you. You're not just an interesting, amusing story. You have a reality too. You're not just about beauty and youth. You have a personality too. You have to change the title of your history. Arise, my love, for now you must march with me. तोड़कर रस्म का बुत बंदे कदामत से निकल. ज़ोफ़ इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल. नफ्स के खींचे हुए हल्काए अजमत से निकल. कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल. राह का खार ही क्या, गुल भी कुचलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. Emerge out of ancient bondage. Break the idols of tradition, the frailty of pleasure, this mirage of fragility. These self-drawn boundaries of imagined greatness. If love becomes a bondage, break that too. Not merely the thorns on the path. You have to trample on flowers too. Arise, my love, for now you must march with me. तोड़िए अज़्म शिकन दगदगाए पंद भी तोड़. तेरी खातिर है जो जंजीर, वो सौगंध भी तोड़. तौक ये भी जुमुर्द का गुलूबंद भी तोड़. तोड़ पैमानाए मर्दानाए खिरदमंद भी तोड़. बन के तूफान छलकना है, उबलना है तुझे. उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. Shatter these resolve breaking suspicions of sermons. These vows that have become shackles, break these chains too. This necklace of emeralds, break these standards set by the wise men. You have to turn into a tempest, bubble and boil over. Arise, my love, for now you must march with me. तू फलातून और रस्तू है, तू जहरा परवी. तेरे कब्जे में है गर्दू, तेरी ठोकर में जमी.
हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे. You are Aristotle's philosophy, Venus, Palladius, the constellations. You control the sky, the earth at your feet. Yes, raise your forehead from the feet of fate. Time will not pause for you, nor will I. How long will you falter? You have to be steadfast. Arise, my love, for now you must march with me. Thank you. Thank you so much. I was very quick and just rushing through. It's just on time. Prasanna keeps appearing and disappearing from a magic box. So I'll take over here. So what a powerful presentation, Sunita. An incredible one. You know, I never thought that Faiz was, you know, such a, I mean, I have read Faiz, I mean, sorry, Kefi. Kefi asked me, but I remember most his lines, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो, है ना, तुम छुपा रहे हो, which is so true of all of us and many of us here. But this is an incredible presentation, and there's so many of these songs. And what is very interesting to me, because you know, if poetry must go into the open, not inside books, not locked up inside songs. We have to sing these songs outside. We have to bring it to the masses. You know, ये जो जोश है, ये जो देश के लिए जो जोश है, जो औरत के लिए जो है, जो इंसानियत के लिए है, इसको आप जितना रिसाइट करोगे, जितना आप उसको वॉइस दोगे, आवाज दोगे, तभी तो जाके उन कवियों को जो हम भूलने लगे हैं. So I'm very happy, Prasanna, that your program is coming out so beautifully, and we have such wonderful poets here today. So our next poet is, are you introducing Dr. her, Manju Prasanna? Chauhan. Yes, go ahead. Yes, ma'am. Let me first, congratulate. I mean, like, I have no words to express my joy of, watching and listening to Sunita, ma'am. That's spellbounding. I mean, uh, I have no words. I mean, like, rise and rise. It's like, oh my God. Thank you, ma'am. Thank you for making your presence, and thank you, Ashish ji, once again with your beautiful presentation. And let's move on to our next panel member, who is a very well-known author. She's an author of 4 books and multiple research papers. She's a professor of English at Chandigarh University. Her name is Dr. Manju. She would be talking about Fiyaz Ahmad Fiyaz, a very well-known poet, writes in Punjabi and Urdu literature. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Rupali ma'am. Thank you, Prasanna ji, for giving this opportunity. And yes, this is really a matter of great pride and pleasure as well to talk about a poet like Faiz Ahmad Faiz. So, and this is also another thing that, today I got a chance to talk about the other poets. Like most of the time, what happens, we go for the like poetic meet, and we recite our own poems. But today, I feel like there was something that was taught to me by my father कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ के सो. So really, I felt it कि आज मैं पढ़ रही हूँ. I went through his poems and then I read. तो ये चीज मैंने आज करने वाली हूँ मैं. तो really, I'm so thankful to you, because it is possible just because of you people, and this is really such a nice practice. Even again, my father says it that God has given us 2 ears and 1 tongue, so we should speak less and listen more. Listen more here, it means that we need to read more, obviously 2 eyes. So I suppose I did that now. So yeah,
So let's talk about Faiz Ahmad Faiz, who was born in Sialkot in 1911. Sialkot was the part of India. Later on, when India and Pakistan got separated, so after that separation, it became the part of Pakistan. Faiz Ahmad Faiz, he writes in Urdu, Punjabi. He even taught also in MOE College, Amritsar. He taught there, like whenever he got his education, after getting his education, he came in the teaching part also. But whenever India and Pakistan became separated, because of this partition, so after that, he became involved in politics. He was a political leader and he was even imprisoned also. There was Rawalpindi conspiracy. So he was found that he was guilty, and that's why he was given death, capital punishment. Although he was like after 4 years, whenever this Zulfikar Ali Bhutto, he came in power, so he was released from the jail. Whenever he was there in the jail, then he found the new perspective for his poems. Like he got a kind of like new perspective to look at life. And this is so amazing whenever we go through his poems, because he talks about like two lines, just like बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है. तो जब आप किसी ऐसे पोएट की बात करते हैं जो शुरू में ही कहता है कि बोल की लब आजाद है तेरे, और जो खुद जेल में रहता है, और जब वो जेल में होता है, जब वो प्रिजन में होता है, तब वो अपनी असली पावर पहचानता है. और वैसे तो कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक जो पोएट होता है उसका सही इंट्रोडक्शन होती है उसकी कविताएं, उसकी पोएम्स. तो मैं आपको पोएम्स की तरफ लेके चलती हूँ. ब्यूटीफुल पोएम्स बाय ब्यूटीफुल पोएट. यस, तो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ हिज पोएम. इट वाज मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा. This is also a kind of like a revolutionary poem. Revolutionary poem in that sense, क्योंकि अगर आप if you look at the tradition of गजल, तो जो लोग गजल से जानते हैं, तो उसमें गजल में ज्यादातर होता है कि like the poet is talking about either the lover and the beloved and the mediator, यानी आशिक, माशूक, और जो बीच वाला होता है वो होता है साकी. तो ये तीन लोग ही होते हैं उसमें, इसके अलावा किसी की बात नहीं होती. बट फॉर द फर्स्ट टाइम अ पर्सन इज देयर, अ पोएट इज देयर हु हैज इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इनटू गजल. उसने ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. तो ऐसे तो वो रेवोल्यूशनरी है ही, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट, ही डज नॉट let himself be silent, because the powerful people, those people who were there in power, they wanted that he should be silent. और एक टाइम ऐसा भी आया था कि फैज अहमद फैज की पोएम्स पाकिस्तान में बैन कर दी थी. एंड इवन देन आल्सो ही बिकेम सो पॉपुलर कि जब उनकी डेथ हुई, तो एट दैट टाइम ही वाज नॉमिनेटेड इवन फॉर दिस नोबेल प्राइज आल्सो, बट ही डाइड 1 year ago. तो that was फैज अहमद फैज. So let me recite his poem, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा. मतलब ऐसा होता है that you know most of the time the lover is complaining to her or to his beloved ki she does not love him adequately, or the beloved may have this kind of complaint कि अरे उसको वो इतना प्यार नहीं करता. But this is also a kind of revolutionary poem that the poet is himself is asking that I have changed, my love has changed, now do not ask me that love again. So just see the poem. He says, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा. मैंने समझा था कि तू है तो दरशाहे हयात. मैंने समझा था कि तू है तो दरशाहे हयात. तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है. तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है.
तू जो मिल जाए तो तकदीर को हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था, यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते यार भी है वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख वही माना तिलिस, रेशमो अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कोचों बाजार में, जिसने खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलती हुई नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी है वसल की राहत के सिवा। तो सच अ ब्यूटिफुल पोयम ही रोट, सच अ ब्यूटिफुल गजल। जब वो कहता है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, कि अगर महबूब है, अगर बिलवड है, तो सब कुछ बिल्कुल ये ऐसा है कि जैसे कि परमानेंट स्प्रिंग है। दरख्शां होता है कि स्प्रिंग, हयात परमानेंट, परमानेंटली, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आ गया है। पहले उसको ऐसा लगता था जब तक उसकी नजर नहीं गई थी उन तड़पते हुए लोगों पर, जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, जो भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब तक उनको नहीं देखा था तो उसको लगता था कि बस महबूब ही सब कुछ है, जो उसकी बिलवड है वही सब कुछ है। इसीलिए वो कहता है कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, कि the sorrow of love is everything, nothing else is there, or nothing is bigger than the sorrow of love। पर अब उसको लगता है कि जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो उसकी ड्यूटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द ड्यूटी ऑफ ए लवर फॉर हिज बिलवड। तो पहले वो एक इंसान है और बाद में वो एक लवर है। इसीलिए उसको कहता है कि पहले मुझे लगता था कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार। अगर तू मेरे सामने है तो लगता था कि बहारें ही बहारें हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और अगर तू मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। पर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, और जब बीइंग अ सेंसिटिव हार्ट, नाउ ही कुड फील कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी राहते और भी है वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल कहते हैं मिलन को, कि मिलन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी राहतें हैं जो जरूरी हैं, या यह ये कहें कि लव से ज्यादा जरूरी और भी कई सारे काम है। तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द पोएम ऑफ बाय फैज अहमद फैज। And I would like to recite another poem also by Faiz Ahmed Faiz, who is so revolutionary in everything. Like one of his poem, it was Hum Dekhenge. Actually, what happened in 1985? हाँ, in 1985, जब पाकिस्तान में there was a general Zia ul Haq, तो his dictatorship was at the top. So, and he never liked Faiz Ahmad Faiz.
It was Ziaul Haq who had issued that the order कि भाई इसको imprisonment होनी चाहिए. और ये भी हुआ कि whenever even फैज अहमद फैज की जब डेथ हो गई, even after his death also he banned all his poems. His poems were not broadcasted there on TV, रेडियो, कहीं पे. मतलब ये हो गया कि उसकी नज़में गजलें पाकिस्तान में ना किसी रेडियो पर सुनाई जाएंगी, ना किसी टीवी पर सुनाई जाएंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम इट ही also had passed an order that no woman was allowed to wear साड़ी. और स्पेशली उस टाइम पे जब जिया उल हक ही वाज रूलिंग ओवर देयर इन पाकिस्तान, तो उसने ब्लैक कलर ही बैन कर दिया था. ब्लैक ऑब्वियसली इज द कलर ऑफ प्रोटेस्ट, तो उसने ब्लैक कलर बैन कर दिया. बट वहां पे क्या हुआ कि देयर वाज अ काइंड ऑफ लाइक पोएटिक शो ऑडिटोरियम में हो रहा था, और वहां पे बहुत ही फेमस, वेरी फेमस पोइटेस गजलकारा है इकबाल बानो. तो शी वेंट टू अटेंड द मुशायरा एंड शी वेंट देयर इन ब्लैक साड़ी. पहली बात तो साड़ी पहनी, दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ लाइक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट. और उसके बाद ब्लैक साड़ी पहनी, मतलब साड़ी भी है और वो भी ब्लैक है. सो इन दैट वे शी वेंट देयर एंड देन शी रिसाइटेड द पोएम ऑफ फैज अहमद फैज, अनदर काइंड ऑफ प्रोटेस्ट. कि फैज अहमद फैज की पोएम्स है वहां पे बैन हो रखी है, तो उसने कहा वो साड़ी पहन के गई, ब्लैक कलर की साड़ी पहन के गई, और वहां जाके फैज अहमद फैज की उसने पोएम गाई, गजल गाई. और इतना अथॉरिटी को प्रॉब्लम हुआ उससे दैट दे स्विच्ड ऑफ द लाइट. कि लोग 50,000 लोग पीपल वर देयर, तो उनको लगा कि अगर हम लाइट ऑफ कर देंगे तो लोग डर के चले जाएंगे. और जो स्पीकर्स थे वो बंद कर दिए, माइक बंद कर दिया. बट द पीपल वर सो मच, दे वर सो enthusiastic, they loved Faz Ahmed so much that the 50,000 people, they sang along इकबाल बानो के साथ खड़े होके. अंधेरे में लोग गा रहे हैं, सबने अपनी जो क्या कहे खुद की अपनी जो भी उनके पास था वो लाइटें जला के, और उन 50,000 लोगों ने इकबाल बानो के साथ जो गीत गाया, जो गजल गाई, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ. हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. We will see. हम देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है. लोहे अज़ल कहते हैं द बुक ऑफ डेस्टिनी. किस्मत में जो लिखा है, किस्मत में मतलब ये कि ऐसा होता है ना कि हर एवरी डॉग इज हैज हिज डे. तो हर किसी का दिन आता है. आज अगर जो भी रूलर है, अगर आज उसका दिन है, कल हमारा दिन भी आएगा. जो भी हेल्पलेस है या जो भी एक्सप्लॉइटेड पीपल है, दे विल ऑल्सो देयर हैव देयर डे, वन डे दे विल ऑल्सो बी देयर इन द पावर. तो इसलिए वो कहता है कि लोहे अजल में लिखा है, जो तकदीर में लिखा है, एक दिन तो तकदीर पलटेगी. एंड वी विल सी, हम देखेंगे कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है. जब जुल्मों सिता के कोहे गिरा, जुल्मों सितम तो जुल्म जो भी वो कर रहे हैं दूसरे लोग, कोहे गिरा मतलब पहाड़, जुल्म के जो भी पहाड़ हैं, जब वो एक दिन रुई की तरह उड़ जाएंगे. इसलिए वो लिखते हैं कि जब जुल्मों से तम के कोहे गिरा, रुई की तरह उड़ जाएंगे. हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के कावे से सब बुत उठवाए जाएंगे. हम अहले सफा मरदूदे हरम मनसद पे बिठाए जाएंगे. सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे. बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी
नाजिर भी उठेगा नलहक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कहते हैं कि जिस दिन हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, महकूमों मतलब दोज पीपल हु आर वेरी पुअर और हु आर एक्सप्लॉइटेड, जब वो एक दिन यूनाइटेड हो जाएंगे तो धरती भी धड़कने लग जाएगी। धड़कने लग जाएगी मतलब धरती हिलने लग जाएगी। वी वुड बी सो यूनाइटेड, सो पावरफुल दैट इवन द अर्थ will also shake, we will shake this earth also। तो धरती धड़कने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जो लोग पावर में बैठे हैं, पावरफुल हैं, दूसरों को मतलब रूल कर रहे हैं, उनके ऊपर जब बिजली कड़केगी इनके गुस्से की, तब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। सो हियर बुत डज नॉट मीन idols, here it means those kind of ideologies, those people who feel that they are everything, they are omnipotent, or they are everything, तो वो लोग अपनी जगह से उठाए जाएंगे और उनकी जगह पर मनसद, मनसद कहते हैं वो सीट होती है ना जिसपे वो पिलोज होते हैं लंबे वाले, तो दैट इज द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, और उस जगह पर आम लोगों को बिठाया जाएगा। वो दिन आएगा और वो दिन हम देखेंगे। So that is as much as, although there is so much to say, but because of the limitation of time, I would like to end my presentation here. Thank you so much. That was such a wonderful presentation, Manju Chauhan. Faiz, Ahmed Faiz, was born in what was free India, but you know, partition divided us even if we didn't want to be divided. So we must remember that poets belong to a borderless world. Poets are for everybody. So beginning with, you know, what Ashish read today, Abudai, Prakashji, you know, about the marginalized. We come to your poetry, you know, we come to Sunita's poetry, where it is also again about speaking up for the people, giving voice to the people, to your presentation on Faiz. I studied at JNU for, you know, I had done my PhD there. And I remember we used to make posters and we used to use a lot of poetry from Faiz. But we would take a line from here, a line from there, and create a poster. So one of my favorite ones is कि हम तो ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, ये खून के धब्बे कब धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद. So this is about the Hindu-Muslim divide, you know. तो आज भी आप देखिए इस देश में, you know, we are in this. एक होगा, एक time आएगा, you know. And then there's another one that, you know, we put together, and that was आज अगर हम चुप रहेंगे तो बस्ती बस्ती जल जाएगी, और फिर वहां से एक आवाज आएगी, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है. So you know how poets inspire us to create other kinds of poetry. To, you know, I'm very moved today. I don't know if you can see that, but I can really move, because unless the poet speaks, unless it's the poet, only the poet who speaks the truth. Madmen also do, so that's why they tell poets, you know, to look the pagal ho, maybe not. So we come to, I think, Prasanna, are you there? Would you like to say a few words? Prasanna's a magician today. Anyway, so we go to our. Ma'am, I'm there. Yeah, okay, you know, okay. Come, please turn up. Where are you? No, I'm today I'm speechless, ma'am. I'm just go on listening, and how mesmerizing it is to, you know, have this wonderful you know, panel members, Dr. Manju ma'am, Sunita Singh ma'am, Ashish ji, you know, giving out their, you know, I mean, their take, what do you call what a beautiful singing, ma'am, and it just got poetic, you know, this too. Yeah. So it's beautiful. Let me thanks once again to the Dr. Manju ma'am for talking about Fiaz Ahmed Fiaz, and you know, shedding a light upon. And imagine those 50,000
people watching and listening and singing together. काश हम लोग सब कर सके ऐसे. So we go to Shalini. Shalini, yeah. She's a Let me multi-talented, gifted writer, singer and painter. She has a diploma in acting from the New York Academy of Theatrical Arts. Wow. She has a degree in English, literature, philosophy, and business management. She enjoys writing poetry both in English and Hindi. Her poems are deeply philosophical and full of beautiful imagery. Her poems have been published in a number of literary journals, anthologies, and magazines. Shalini will today speak on Shanta Sinha. And interestingly, it's her own mother who is also a poet. So we have a daughter speaking about her mother, and she was a very well-known poet. And when she finishes making a presentation, then I'd like to read a few lines from the poet. So Shalini, please go ahead. Unmute. Can't hear you. I suppose even we are also not audible to her. No, somebody has to unmute her, I think. I think she needs to be unmuted. I don't know how to do all this. Yeah, just go to her part. There's a mic there. You just touch it and she can be Yeah, unmuted. try Yeah, to. now, yeah. All Yeah. right, can you hear me now? Yes, 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 yes. Okay, great. So a little challenged here. So help of my granddaughter. So Rupali, thank you so much. And dear Prasanna and all of you, it's been an enthralling evening. And I'm been absolutely mesmerized. And all those wonderful ghazals that you all have spoken about at one point of time, kabhi kabhar gaya karte the. So it has a special rapport. I thank Kripali and Prasanna for giving me this opportunity to speak about my mother. It's for me, I feel that I'm not capable enough to be able to speak about her. But it's just a very humble Shraddhanjali to her as I speak about her. So she lived from 1926 to 2003. And she was born in a small village called Sihin in Bihar. So it was in Gaya district. Her initial schooling was done in Hazaribagh, and she completed her graduation in psychology honors from Patna Women's College, which is a very well-known college in Patna, and her master's in psychology from Patna University. So she joined as a lecturer in GBM College Gaya and moved to Arvind Mahila College Patna, from where she retired as a reader. Now, she was one of the most eminent women writers of her time, a very well-known and respected personality in Bihar literary circles. Her stories explored subtle realms of human psyche, which she expressed with a rare sensitivity and sensibility. I think it all stems from her own life, which was a journey of great difficulty, and her triumphs and how she overcomes that. Age 49, I think she joined the university as a lecturer after my father had passed away. So her poetry reflects that her personality, and her subjects and themes she chose had a universality, and that transcended time because they are still very relevant today. I think the human mind is ever the same, I think. So once I read out her poems, then you'd be able to understand.
The language and the shades, she had her language and there were shades of brilliance in whatever she wrote. Her imagery had a freshness and somewhat modernistic and much talked about in her times. Her short stories were published in top prestigious Hindi magazines like Dharmyug, Gyanoday, Parampara, and many other journals. So her name was listed also in the who's who of Hindi writers. And she would have, All India Radio would always broadcast her stories every weekend, which she read sometimes, and sometimes they were read by other writers. And some of her short stories were scripted into short plays, which were, I think one of them, which was Pichle Sitambar Mein, was transcripted, and I think at the Film Institute, I think someone had presented it, and I think it had received a gold medal for that. So she has a poetry collection called Samanantar Sune, from which I will be reading out some of her poems. And her short story collection was called Symphony. She had written a novel, Sari Raat Hawa, Pichle Sitambar Mein, and Kabhi To Ujala Hoga. So I think I will read out her poems because I think that would really sum up more than, I would speak about her, because talking about her is quite an emotional journey for me. So I would rather that I read her poems out. तो उनकी एक कविता है, अभी अभी बारिश हुई थी, अभी अभी बारिश हुई थी, फिर भी मौसम है खराब चेहरे का। अभी अभी बारिश हुई थी, फिर भी मौसम है खराब चेहरे का। रात की सीढ़ियां खाली हैं, रात की सीढ़ियां खाली हैं, नींद किसी उत्सव में गई है, नींद किसी उत्सव में गई है, यह धुन ही कहीं खो गई है। जिंदगी है कि बस यूं ही मचल रही है। ऐसा क्यों होता है कि एक सत्य की सीमा को हजार सत्य तोड़ नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है कि सत्य की सीमा को हजार सत्य तोड़ नहीं पाते? रेंगते हैं, घुटते हैं, लुटते हैं उसी में, उसी से अभी अभी हवा आई है। फिर भी बदली आंखों की बेतरह घिरी है, फिर भी बदली आंखों की बेतरह घिरी है। आसमान की सड़कें सुनसान हैं, बादलों के कुत्ते रह रह कर भौंक रहे हैं, तारों के लैंप पोस्ट मध्यम पड़ गए हैं, तारों के लैंप पोस्ट मध्यम पड़ गए हैं। चांद दरवाजे पर खड़ा है, धरती का दिल धड़क रहा है। चांद दरवाजे पर खड़ा है, धरती का दिल धड़क रहा है। दर्द पेड़ तले औंधा पड़ा है, दर्द पेड़ तले औंधा पड़ा है। सपने दवा की दुकान पर हैं और मन किसी चौराहे पर बिलम गया है। क्या होता है कि टिकट लगाने के बावजूद कभी कभी जिंदगी का लिफाफा बेरंग लौट आता है? क्या होता है कि टिकट लगाने के बावजूद कभी कभी जिंदगी का लिफाफा बेरंग लौट आता है? उनकी कविताएं बहुत फिलोसॉफिकल भी थीं, and towards the end of her life she contemplated a lot and she became very spiritual. तो कहीं कहीं वो एक झलक है उनकी कविताओं में भी। उनकी एक और कविता पढ़ रही हूँ, मैं हूं नहीं के बावजूद, मैं हूं नहीं के बावजूद, रात की घाटी में असंख्य दिए जल गए नींद के, रात की घाटी में
असंख्य दिए जल गए नींद के, मेरे भटके हुए विश्वासों के चरण थमने। जो मेरी कुंठाओं के कफन में लिपट लिपट कर बहुत दिन हुए मुर्दा हो गए। जो मेरी कुंठाओं के कफन में लिपट कर बहुत दिन हुए मुर्दा हो गए, और मैं रोज अपने अस्तित्व को बेच बेच कर छोटा हो जाता हूँ। और मैं रोज अपने अस्तित्व को बेच बेच कर छोटा हो जाता हूँ। मात्र खोपड़ी और अस्थि पंजर प्रयोगशाला की दीवारों पर लटका हुआ, और मैं रोज अपनी अस्तित्व को बेच बेच कर छोटा हो जाता हूँ। मात्र खोपड़ी अस्थि पंजर प्रयोगशाला की दीवारों पर लटका हुआ। उनकी एक और कविता जो बहुत प्रिय है, पढ़ रही हूँ। अनगिनत कोमल रंगों में घिरा, सपनों के जंगल में भटका हुआ चांद। सपनों के जंगल में भटका हुआ चांद, ख्वाहिशों की घाटियां पर तुतलाती हुई हवा, या कि मैं हैरान हूँ। अनगिनत कोमल रंगों में घिरा एक ही शेड के महसूस कर रहा हूँ। चांद और हवा के उजड़े बुझे चेहरे अपने गरीब सीने पर निरंतर। सपनों के जंगल में भटका हुआ चांद, ख्वाहिशों की खाटियों पर तुतलाती हुई हवा, या कि मैं हैरान हूँ। अनगिनत कोमल रंगों में घिरा एक ही शेड के महसूस कर रहा हूँ। चांद और हवा के उजड़े बुझे चेहरे अपने गरीब सीने पर निरंतर। तमाम रात संदर्भों में परे भटक रहा हूँ। तमाम रात संदर्भों से परे भटक रहा हूँ, जमाने से सुर्ख फूलों की तलाश में। तमाम रात संदर्भों से परे भटक रहा हूँ, जमाने से सुर्ख फूलों की तलाश में। she always had an imagery which was quite a controversial, बहुत चर्चित थी अपने times में. The kind of imagery she used to use, the kind of metaphors she would use in all her poetry. क्या पढ़ूं? Actually, when I started reading from her book Samarantar Sune, every poem that I picked up, had a story to it. Every poem had a personal, एक लगाव था. So it was very difficult to take out 2-3 poems and, उसे पढ़ूं. पर थोड़ी बहुत few more poems, and I think should be done. Another favorite मेरा जो है वो पढ़ूंगी अभी, होली. अच्छी होली खेली है सांझ ने, अच्छी होली खेली है सांझ ने, कि शहर का शहर है शराबोर रंग में। अच्छी होली खेली है सांझ ने, कि शहर का शहर है शराबोर रंग में। नदी गुनगुनाती है, ये अच्छा मजाक है। नदी गुनगुनाती है, ये अच्छा मजाक है। सारी साड़ी ही रंग गई गुलाल में। नदी गुनगुनाती, ये अच्छा मजाक है। सारी साड़ी ही रंग गई गुलाल में। सांझ खिलखिलाती है, ये रंग है नकली। सांझ खिलखिलाती है, ये रंग है नकली। उड़ जाएगा बात की बात में। और क्या कहूँ, इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एनीथिंग उनके बारे में. She was a very sensitive writer.
And being a psychologist, I think she always, all her stories dealt with the intricacies of the mind, how the mind reacted to a given situation, how like she went into realms which were very subtle. So as I don't know if I have been able to, I don't know how I can express her except through her writings. So I'm talking about the 60s is when she started writing. And at the time when the imagery that she used, like she would use the imagery of a sunset, which would be like an omelet, like for आसमान की तश्तरी में वो एक फ्राइड ऑमलेट. तो वो उनकी उस तरह की जो इमेजरी थी वो काफी मतलब कंट्रोवर्शियल थी, बिकॉज उस समय इस तरह के थीम्स और इस तरह की इमेजरी इस्तेमाल हुआ नहीं करती थी. So let me see if I can find that poem to read out to you. मिल नहीं रहा है, पर मैं एक और कविता पढ़ करके ही I will complete it. दिन रात. दिन सब नकली मोम के मोती रात की आंच में जाते हैं पिघल. नींद सब नकली मोम की मोती रात की आंच में जाते हैं पिघल. रात स्किज़ोफ्रेनिक एक खास दूरी में, रात स्किज़ोफ्रेनिक एक खास दूरी में हर रोज करती है आना जाना, आना और जाना, जाना और आना नपे तुले कदमों से. रात स्किज़ोफ्रेनिक एक खास दूरी में हर रोज करती है आना और जाना, जाना और आना नपे तुले कदमों से. इसलिए जिंदगी है बेमानी, इसलिए जिंदगी है बेमानी. एक झूठ, एक पागल का बकवास, हंसना और गाना, गाना और हंसना. जिंदगी करती है हेरा फेरी एक खास दूरी से. सानी निसा. तो आई थिंक इन्हीं से मैं आई क्लोज की कविता. सो ये इनकी कहानी संग्रह समानांतर सुने से दी गई थी और उसे मैं पढ़ के सुना रही थी. सो आई विल से थैंक यू वेरी मच. It's very difficult for me to speak because I know that there's a lump in my throat and I think about her and I'm living the days when gone back to the days when she was there with us. So thank you so much for this wonderful opportunity to speak about her. Prasanna? It was such a humbling experience to listen and watch. I was just wondering as to how these poets have, I mean, what was their mindset when they put their hearts out in terms of writing poetry or expressing their emotions. It's like protest, like Sunita Singh ma'am said, like Dr. Manju's ma'am, Shiji, Shalini ma'am, of course, emotional, it's a personal experience. Personal, very much close. It is inconsolable sometimes, I would say, but remarkable. I don't know how could I express my thankfulness to you all for accepting the invitation and coming up with your choice of poets and talking about them wholeheartedly. And it's much of creating the eagerness to
know about something more about, deep dive into the poets. I salute you all, and I think I only ask the viewers to watch for the the time or the announcement for the next event, to listen to some more poets talk about their choice of poets. Rupali ma'am. Yes, thank you so much, Shalini. I know that you were moved. Earlier also we had Dr. Shahina Khan, who read about from her father's poems, Janab Sarosh. And I can understand, but the deep connection you have with the poet, we have the same with you. And so we all feel very emotional that your mother was a poet first and mother second. Mother second. But knowing that the kind of sorrow that you have recently gone through, very loss of your spouse, and then you are reading from your mother's poems. I can only read from one of the poets that has been mentioned here. कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो. Now, as far as your mother's poetry goes, I think that she was Shanta Sinha. I won't say your mother. Shanta Sinha was a poet who was actually an inqalabi. Today we've had revolutionary poets, but we must understand, even if the voice is soft, the voice is saying a lot. And her voice, I'm going to read from a poem which is very relevant for us today in this country. It's called Symphony. सिम्फनी की बारिश में भीगती थकी थकी उदास शक्लों की साँझ एक दिन आई मेरे पास चुपचाप प्रेयसी की तरह और बोली. क्या बोली इज वेरी इंपॉर्टेंट. उठो, छोड़ो ये राग देश समाज संस्कृति का, मत पियो ये जहर, बढ़ो आगे नई रेत पर, खीमे खड़े हैं पुराने नए, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को घड़ी भर पना लो. So this kind of nationalism that we try to propagate these days, let's forget it. Imagine she was writing it then, because this is so relevant to us. So तुम्हारे शांता सिन्हा जी हैं, उनकी कविता बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी है. वो उन्होंने उस टाइम कहा जो आज हमारे लिए बहुत जरूरत है. कि forget this जहर, it's a जहर. कि हम अपने संस्कृति, अपने देश, अपना सब कुछ की बात करें, जबकि there is so much. Aurangzeb, there's a story, there is a letter written by Aurangzeb apparently to his teacher. His teacher wanted a job in the court, and Aurangzeb said, no, I will not give you that job because आपने मुझे सिखाया क्या? Did you tell me about the great nations? Did you tell me about the great leaders? Did you tell me about other cultures? And your mother is saying the same thing. So Shanta Sinha ji ke liye बहुत बहुत नमन and बहुत बहुत thank you, all of you. This has been one of our best segments, one of the most wonderful, and I don't know, the sense of gratitude I feel. Please come again and be with us. Thank you so much. Thank you all so much. Thank you all so much. Thank you so much. Thank you. Everybody.